رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بائبل مقدس کی ہر کتاب کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ اگر آپ پہلی بار پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ گزشتہ ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.biblimutaliah.com وزٹ کیجیے۔ ابھی ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور یہ عہد قدیم کی دوسری شاعرانہ کتاب ہے، اور آج ہم 54، 55 اور 56ویں زبور کا مطالعہ کریں گے۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ بھائی یوسف، خوش آمدید۔ بہت شکریہ بھائی، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، سب سے پہلے ہمیں زبور 54 کے عنوان کے متعلق بتائیے۔ میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ داؤد کا مشکیل، اس وقت کا جب زفیون نے جا کر ساؤل سے کہا داؤد ہمارے ہاں چھپا ہوا نہیں۔ آپ ہمیں اس واقعے کے متعلق بتائیے۔ میں اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ 51 سے لے کر 60 تک سب زبور داؤد کے ساتھ ہونے والے، میں کہوں گا کہ مختلف واقعات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر زبور 51 میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور بیت سبا کے پاس جانے کے بعد جب ناتن نبی اس کے پاس آیا۔ زبور 52 میر مغنی کے لیے داؤد کا مشکیل جب دویگ نے جا کر ساؤل کو بتایا کہ داؤد اخی ملک کے گھر داخل ہوا۔ زبور 54 میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ داؤد کا مشکیل، اس وقت جب زفونیوں نے ساؤل سے کہا داؤد ہمارے ہاں چھپا ہوا نہیں۔ زبور 56 یونت علیم رخوکیم کے سر پر داؤد کا مزمور، مقام اس وقت کا جب فلسطینیوں نے اسے جات میں پکڑ لیا۔ اور زبور 57 اس وقت کا جب وہ مغارہ میں داؤد سے بھاگا تھا۔ زبور 59 جب ساؤل نے لوگوں کو اس کے گھر بھیجا تاکہ اس کو مار ڈالیں۔ لیکن یہاں میں کہوں گا کہ داؤد جتنے بھی مشکل حالات سے گزرا اس نے زبور لکھے، اور اس سے ہمیں اچھا سبق ملتا ہے کہ ہم چاہے جتنے بھی مشکل حالات میں سے گزریں، لیکن وہ سب حالات خدا کے قابو میں رہتے ہیں، اور اس سے ہم میں اچھی تبدیلی آتی ہے جو لوگوں کے لیے بابرکت ہوتی ہے۔ ہم بہت مرتبہ قیمت چکاتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ یہ خدا کے لوگوں کے لیے ہمت، تسلی اور برکت کا باعث ہوتا ہے۔ پس مشکل حالات سے خدا کے لوگوں کے لیے بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ اور زبور میں لکھا ہے کہ جب زفونیوں نے جا کر ساؤل سے کہا کہ داؤد ہمارے ہاں چھپا نہیں ہوا، اور زیفی کے لوگ چاہتے تھے کہ داؤد کو قتل کریں، حالانکہ داؤد نے ان کے ساتھ صرف اور صرف بھلائی ہی کی تھی، پر انہوں نے اس کے بدلے میں اس کے ساتھ برائی کی۔ یہ اس کی علامت ہے جو داؤد کے بیٹے یعنی یسوع کے ساتھ ہوا، جو بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا۔ تو بھی انہوں نے ایک قاتل کو اس پر ترجیح دی۔ انہوں نے یسوع کو نہیں بلکہ برابا کو چاہا۔ وہ میری محبت کے سبب سے میرے مخالف ہیں۔ بالکل۔ پہلی آیت ہے، اے خدا اپنے نام کے وسیلے سے مجھے بچا اور اپنی قدرت سے میرا انصاف کر۔ اے خدا میری دعا سن لے، میرے منہ کی باتوں پر کان لگا، کیونکہ بیگانے میرے خلاف اٹھے ہیں اور تندخو لوگ میری جان کے خواہاں ہوئے ہیں۔ انہوں نے خدا کو اپنے روبرو نہیں رکھا۔ صلا۔ آپ ہمیں ان دکھوں کا بتائیں جن کا سامنا ہر دور میں ایمانداروں کو کرنا ہوتا ہے، داؤد کے دور میں یا مسیح کے دور میں یا مستقبل میں ان کو دکھ سہنا ہے۔ آغاز میں ہی ایسا ہوا، ہابیل کا قتل ہوا۔ وہ بائبل میں راست باز تھا اور یوسف کو بھی اس کے بھائیوں نے دھوکہ دیا، اور داؤد نے دکھ اٹھایا۔ بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے، لیکن میں کہوں گا تو بھی ہمیں ایک امید رہتی ہے، کیونکہ خدا مشکل میں بھلائی پیدا کرتا ہے، مصیبت میں صبر پیدا ہوتا ہے، اور یہ حال کے لیے ہے۔ اور مستقبل میں کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کر جاتی ہے۔ اور میں کہوں گا مصیبت کے دو نتائج ہیں۔ مصیبت اچھی نہیں، یہ نا انصافی ہے، کیونکہ انسان شریر ہیں، اور پھر میں کہوں گا یا تو بدی کے بدلے بدی کریں۔ یوں ہم مسیح کے پیروکار نہ ہوئے، کیونکہ اس نے خود بھی ایسا نہیں کیا، اور اسی لیے ہم مصیبت کی
बर्दाश्त करते हैं, जैसा कि एक नतीजा हाल में और दूसरा मुस्तकबिल में है। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि इसके नतीजे में हम रूहानी बरकत पाते हैं, और दाऊद के साथ भी ऐसा ही हुआ। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि ये मुसीबतें हमें मुस्तकबिल के जलाल के लिए तैयार करती हैं। सही, इसका ताल्लुक तीसरी आयत से है। क्योंकि बेगाने मेरे खिलाफ उठते हैं और तुंदखू लोग मेरी जान के ख्वाहा हुए हैं। भाई यूसुफ, इस आयत में मैंने देखा कि आज भी ईमानदारों के साथ ऐसा ही हो रहा है। मतलब दाऊद के खिलाफ भी बेगाने लोग उठे और उसने दुख सहा, और मुस्तकबिल में और कौमें इसराइल के कौम को दुख पहुंचाएंगी। हम इराक और शाम के ईमानदारों के लिए क्या कह सकते हैं? बेगाने उनके खिलाफ उठते हैं और तुंदखो उनकी जान के ख्वाहा हैं। आप ऐसे दुख और मुश्किल में घिरे लोगों को क्या कहेंगे जिन्हें निकाल दिया है? मैं उन्हें बहुत कुछ कहना चाहूँगा। बाइबल में ऐसे लोगों के लिए बहुत से वादे मौजूद हैं। मसलन खुदावंद सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदालत का काम करता है, और आपका मुकदमा किसी गैर मुल्की अदालत या सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है जहां मसाइल का कोई हल ना मिल सके, बल्कि हम तो अपनी मुश्किलात अपने खुदा के हाथ में सौंपते हैं। मुकदमा उसके सामने है और तो उसके लिए ठहरा हुआ है। मुकदमा मुनसफ के सामने है और वो बदी से भी भलाई पैदा करता है। जो मुसीबत में है वो उनको सैर करता है। और मैं कहूँगा कि दूसरों के साथ ना इंसाफी करने से बेहतर है कि जो कुछ भी होता है वो उसे खुद ही सह ले, क्योंकि खुदावंद आपको तसल्ली और हिम्मत देता है और आपको संभाल लेता है। पर कबीलों के साथ नाइंसाफी खुदा आपके खिलाफ है। अगर आप अपने हक के लिए खुद लड़ें लेकिन खुदावंद आपके खिलाफ हो, वो अच्छा है। या ये कि खुदावंद आपसे राजी हो और यकीनन वो बेहतर तौर पर चीजों को बहाल करके आपका हक आपको जरूर देता है। आपके दुश्मन आपके खिलाफ खड़े हों, देखो खुदा मेरा मददगार है, खुदावन मेरी जान को संभालने वालों में है। मैं तेरे हजूर रजा की कुर्बानी चढ़ाऊंगा। ए खुदावन, मैं तेरे नाम की शुक्रगुजारी करूंगा क्योंकि वो खूब है। भाई यूसुफ, हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। ज़बूर 54 में हमने देखा कि दाऊद को धोखा मिला मुसीबत के दौर में। जब कलीसिया आसमान पर जा चुकी होगी, तब एक भाई दूसरे भाई को धोखा देगा। मुसीबत का वक्त दुख से भरा और दर्दनाक होगा। दाऊद ने चाहा कि ज़फ़्यून के साथ छुप जाए, लेकिन उन्होंने उसको धोखा दिया। खुदावंद के सिवा दाऊद की कोई पनाह ना थी, वही उसका महकम कला रहा। अजीज नाजरीन, अगर आपके दोस्त आपको धोखा दें तो खुदावंद में पनाह लें। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 5वीं आयत है, वो बुराई को मेरे दुश्मनों पर ही लौटा देगा, तू अपनी सच्चाई की रूह से इनको फना कर। 7वीं आयत है, और मेरी आंख ने मेरे दुश्मनों को देख लिया है। क्या हम खुदा के आगे झुकें और उसको कहें कि हमारे दुश्मनों से इंतकाम ले? भाई यूसुफ, हमें बताइए कि मुसीबत में हमारा रद्द-ए-अमल कैसा हो। 3 तरीके हैं। पहला कि आप खुद अपने हकूक के लिए लड़ें। आजकल अक्सर लोग ऐसा करते हैं, वो लोगों को खुद बदला देते हैं। दूसरा ये कि खुदावंद से कहें कि वो बदला दे। तीसरा, खुदा को कहें कि आपका मुहाफिज हो। तीसरा तरीका बुज़दिली और कम हिम्मती समझा जाता है। आप क्या कहेंगे? मैं चौथा तरीका बताता हूँ। मैं कहूँगा जो आपके साथ बुरा करें उन्हें माफ किया जाए, और मसीह भी यही तालीम देता है। बाइबल में लिखा है, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, और स्तिफनुस ने भी यही किया था, और स्तिफनुस से पहले मसीह ने भी यही कहा, ऐ बाप इनको माफ कर। फिर दाऊद ने ऐसा क्यों कहा? यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि अगस्तन रसूल की मशहूर कहावत है, तकसीम के दरमियान का फ़र्क समझें ताकि कलाम को सही तौर पर जान सकें। दाऊद फजल के दौर में नहीं रहा। उस वक्त मसीह ने आकर अपने दुश्मनों को माफ नहीं किया था, लेकिन मसीह के आने के बाद यहाँ स्तिफनुस ने भी यही कहा। मुकाशफा 6 बाब कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद मैं कहूँगा कि लोग यही कहेंगे जैसा दाऊद ने कहा, और मैं कहूँगा कि मुकाशफा 10:6 में भी यही लिखा है,
وہ बड़ी आवाज से चलाकर कहेंगे, ऐ मालिक, ऐ कदूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। उन्होंने कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद बदला मांगा, पर मसीह के पैरोकार होते हुए उसकी पैरवी करें, अपने मालिक के नक्शे कदम पर चलें। जब वो उसे पकड़ने को आए तो उसने क्या किया था? पतरस ने एक सिपाही का कान काट दिया। वो उसको कत्ल भी कर सकता था, लेकिन मसीह ने इस बात की इजाजत ना दी और उसे ठीक किया और उसको शिफा दी। और मैं कहूंगा कि हमें भी मसीह की पैरवी वैसे ही करनी है जैसे उसने की। सही। अब मैं ज़बूर 55 की तरफ बढ़ूंगा। इसका उन्वान है मीर मुगन्नी के लिए तारदार साजों के साथ दाऊद का मशकील। यहाँ लिखा है, ऐ खुदा, मेरी दुआ पर कान लगा और मेरी मिन्नत से मुंह ना फेर। मेरी तरफ मतवज्जा हो और मुझे जवाब दे। मैं गम से बेकरार होकर कराहता हूँ दुश्मन के आवाज़ा से और शरीर के जुल्म के बायस, क्योंकि वो मुझ पर बदी लादते और कहर में मुझे सताते हैं। भाई, मैं चाहूंगा कि इन अल्फाज के मुतालिक आप बताइए। इस जबूर में दोस्त के धोखे और बेवफाई की वाज़ेह बात हुई है। जब कोई फरेबी दोस्त दुख दे तो बहुत दर्द होता है, और हम पढ़ते हैं कि दाऊद ने 12वीं आयत में सबसे ज्यादा दुख के हालात बयान किए हैं। वो जिसने दुश्मन मुझे नहीं था। मलामत की वो दुश्मन ना था, वरना मैं उसको बर्दाश्त कर लेता। और जिसने मेरे खिलाफ तकब्बुर किया वो मुझसे अदावत रखने वाला ना था। तो दाऊद को इतना दुख क्यों हुआ? बल्कि वो तो तू ही था, मेरा हमसर, मेरा रफीक और मेरा दिली दोस्त। हमारी बाहमी गुफ्तगू शीरीं थी और हजूम के साथ खुदा के घर में फिरते थे, और यकीनन उसने जलूनी अखी तुफल की बात की। अफसोस के उसके सबसे करीबी ने उसको धोखा दिया, और मैं कहूंगा कि इससे उसे गहरी चोट पहुंची। और कोई भी दाऊद जितने दुख से नहीं गुजरा सिवाय सिर्फ यीशु मसीह के। और मैं कहूंगा यहूदा अस्करियोती जो यीशु मसीह के साथ था, दरअसल उसने बहुत ही बुरा किया जो जलूनी अखीतुफल ने, मैं कहूंगा कि दाऊद के साथ किया। दुख और दर्द की हालत में दाऊद ने 6ठी आयत में कहा, और मैंने कहा, काश के कबूतर की तरह मेरे पर होते तो मैं उड़ जाता और आराम पाता। फिर तो मैं दूर निकल जाता और बियाबान में बसेरा करता। सिला, मैं आंधी के झोंकों और तूफान से किसी पनाह की जगह में भाग जाता। दाऊद ने ख्वाहिश की कि उसके पर होते तो वो मुसीबत और परेशानी से भागकर बियाबान में चला जाता। मेरा एक सवाल है, दुख की हालत में हम किस जगह भागें जो सबसे महफूज जगह हो? खुदा उनका नाम मुहकम बुर्ज है। सादिक इसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना। और अगर आप चाहते हैं कि मुश्किल हालात और शरीरों की बदी से भाग जाएं, तो ये बुरा नहीं, क्योंकि माजी में भी ऐसा हुआ था। मेरा मतलब पहले भी ऐसा हुआ था, और मसीह के जमाने में भी ऐसा हुआ। फरिश्ता यूसुफ को दिखाई दिया और कहा कि बच्चे को लेकर मिस्र चला जा। भागना बुरा नहीं। बच जाने वाले ईमानदारों के साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इस जबूर का नबूवती पहलू भी दरअसल यही है। कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद ईमानदारों के साथ ऐसा ही होगा। उस औरत को उकाब के 2 बड़े पर दिए गए ताकि उड़कर उस बियाबान में पहुंच जाए जहां जमाने और जमानों और आधे जमाने तक उसकी परवरिश की जाए। और मैं कहूंगा कि ये मुसीबत के दौर के 3.5 बरस हैं। भाई यूसुफ, हमें फजल के तख्त का बताएं कि वही हमारी पनाह है जब हम परेशान हों और खुदा उनकी हजूरी में जाएं। मसलन जब हिना खुदा उनकी हजूरी में गई तो उसमें तब्दीली आई। आप हमें इसके बारे में बताइए। देखें, मैं कहूंगा कि खुदा का नाम ही बेहतर पनाह है, और ये सादकों की पनाह है, और वो इसमें महफूज रहते हैं। अगर आप फलस्तीन में हों और आप मिस्र जाना चाहें तो मैं कहूंगा कि ये बहुत दिनों का सफर है, लेकिन खुदा की महफूज पनाह में जाने के लिए 1 सेकंड लगता है। जब आप अपना दिल उसकी तरफ लगाएं तो आप फजल के तख्त के सामने होते हैं। हिजकिय्याह बादशाह ने कुछ सेकंड्स में फजल के तख्त में पनाह ली, उसकी दुआओं का जवाब मिला, और हन्ना भी उसमें दाखिल हुई और उसकी दुआओं का जवाब मिला। और मैं कहूंगा कि मुश्किल वक्त में वही हमारे लिए बेहतरीन जगह है। फिर इसके बाद 16वीं और 17वीं आयत है, पर मैं तो खुदा को पुकारूंगा और खुदावन मुझे बचा लेगा। सुबह और शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और कराता रहूंगा, और वो मेरी
आवाज सुन लेगा। उसने उस लड़ाई से जो मेरे खिलाफ थी मेरी जान को सलामत छुड़ा लिया। भाई दाऊद ने कहा कि खुदा ने उसकी फरियाद और उसकी दुआ सुनी, लेकिन मेरी तवज्जो उस पर पड़ी। सुबह और शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा, यानी कि दिन में किसी भी वक्त। इससे हम क्या सीखते हैं? देखें भाई, मैं कहूंगा कि इंसान के लिए ये अच्छा है कि वो अपने दिन का आगाज दुआ से करे और इसका इख्तिताम भी दुआ से किया जाए। एक पुराना गीत है, ऐ मेरे दिल हर चीज में खुदा को पुकार और हर चीज में दुआ किया कर। अपना दिन दुआ से शुरू करें और इख्तिताम भी दुआ से करें। सिर्फ सुबह और शाम में नहीं बल्कि दोपहर में भी दुआ करें। दोपहर को काम पर होते हुए भी दुआ करें। अगर आप काम पे किसी मुश्किल में पड़ जाएं तो खुदा के साथ अपना दिल लगाएं और एक सेकंड में खुदावंद आपको मिल जाएगा। जी, खुदा आपको चाहे मिल सुबह जाएगा। हो या शाम। और खुदा से मिलने के लिए आपको खास जगह जाने की जरूरत नहीं। अपना दिल खुदा की तरफ लगाएं, खुदा के तख्त के सामने हाजिर हों। अपने कमरे का दरवाजा बंद करें और इसका कोई मखसूस वक्त नहीं। और ऐसा भी हो सकता है आप अपने बॉस से बात करते हुए खुदा से दुआ करना शुरू कर दें। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि नहमिया ने भी ऐसा किया। सही। दूसरे सलातीन चौथे बाब में अलीशा ने शुनीमी औरत से कहा, आज तो ना नया चांद है ना सब्बत, यानी वो उस मौका पर जाती थी। लेकिन खुदावंद सिर्फ नए चांद और सब्बत पर नहीं मिलता, वो कभी भी मिल सकता है। बिल्कुल सही भाई, हमें इस ज़बूर पर आप अपनी हतमी राय दें। 22वीं आयत में लिखा है, अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभाल लेगा, वो सादिक को कभी जुम्बिश न खाने देगा। इस आयत से हम क्या सीखते हैं? अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभाल लेगा। देखिए, मैं कहूंगा कि ये आयत पहले पतरस की आयत से मिलती है। अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो, उसे तुम्हारी फिक्र है। हर एक और हर चीज को मत खो दें, बस अपनी दलेरी को अपने हाथ से खोने ना दो, क्योंकि इसका अजर बड़ा है। और कभी कभी हम कुछ गलत करके अपनी दलेरी खो देते हैं। हम अपनी परेशानियां नहीं खोते, हम उन्हें अपने पास रखते हैं, पर हमें चाहिए कि हम ऐसा ना करें। अपना बोझ और अपनी परेशानी खुदा को दें, अपनी दलेरी को मत खोएं। अपनी परेशानी खुदा को दे दें, दिन ब दिन एक एक करके अपना सर उठाएं। जी, हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 23वें आयत में लिखा है, लेकिन ए खुदा तो उनको हलाकत के गड्ढे में उतार देगा, खूनी और दगाबाज अपनी आधी उम्र तक जीते ना रहेंगे। आप हमें ये आयत समझा दीजिए। इस आयत पर आप क्या कहेंगे भाई यूसुफ? इसको बयान करने के लिए 21वीं और फिर 22वीं आयत को पढ़ें। वो लोग खून के प्यासे थे। उस शख्स ने ऐसों पर हाथ बढ़ाया है जो उससे सुलह रखते थे। उसने अपने अहद को तोड़ दिया है। वो धोखेबाज हैं और उसका मुंह मक्खन की मानिंद चिकना था, पर उसके दिल में जंग थी। उसकी बातें तेल से ज्यादा मुलायम और नंगी तलवारें थीं। इस आयत में जिक्र हुआ है कि अबीसलूम ने दाऊद के साथ बगावत की और जलूनी अखीतफल ने उसका साथ दिया, लेकिन उसने कहा कि उनका अंजाम बुरा होगा और वो उससे वाकिफ था। उसने कहा, खूनी और दगाबाज अपनी आधी उम्र तक जीते ना रहेंगे। पहले कौन मरा? बाप दाऊद या उसका बेटा अबीसलूम? अबीसलूम बेटा, क्योंकि वो खूनी था और दगाबाज था। उसने अपने बाप को कत्ल करना चाहा, वो झूठा था। उसने लोगों का दिल अपनी तरफ माइल किया, पर वो अपनी आधी उम्र भी जीता ना रहा। वो जवानी में मर गया। वो अपनी आधी उम्र भी जीता ना रहा। और इसके बरक्स मैं कहूंगा कि उसका बाप बूढ़ा होकर मरा। और ज़बूर के आखिर में हमें दाऊद की इस बात से तसल्ली मिलती है, खूनी और दगाबाज अपनी आधी उम्र तक जीता ना रहेगा, पर मैं तुझ पर तवक्कुल करूंगा। खुदावंद पर भरोसा रखें, वो बचाता है। अपनी दगाबाजी और झूठ और लोगों का खून बहाने पर भरोसा ना रखें। तलवार चलाने वाला तलवार से हलाक होता है। भाई यूसुफ, जैसे कि लिखा है कि खूनी अपनी आधी उम्र भी जीता ना रहता। बिल्कुल। लेकिन सादिक आदमी ने कहा, ऐ मेरे खुदा मुझे आधी उम्र में ना उठा। उसने ऐसा क्यों कहा जबकि खुदा यीशु मसीह वाहिद सादिक इंसान था? देखिए, मैं यहाँ पर कहूँगा कि मसीह बहुत से मुश्किल हालात से गुजरा और मसीह भी दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। सही।
भाई अलीम, अगला ज़बूर 56वां ज़बूर है, उसका अनवान है मीर मुगन्नी के लिए यूनत अलीमीन रखूकीम के सुर पर, दाऊद का मज़मूर मतकाम। मैं चाहूँगा कि आप इसके उन्वान पर अपनी राय दें। ये थोड़ा अजीब है। जी, इसमें दाऊद ने खुद को एक कबूतर कहा जो दूर जा सकता है। दरअसल मैं कहूँगा कि वो बहुत मुश्किल हालात में फंस गया था, और इस बुरे लम्हे में उसने क्या किया। मैं कहूँगा कि वो बेगाने लोगों में रहा और उसने खुदा से फरियाद की कि वो उसकी मदद करे, और उसने फक्त यही किया और खुदा ने उसे बचाया। और यहाँ पर हमें दाऊद के बेटों का भी हवाला मिलता है, जो कि कलाम के मुताबिक एक कबूतर जैसा है। शायद दाऊद ने कभी लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, लेकिन दाऊद का बेटा मसीह हलीम था, बहुत हलीम था। वो भी अजनबी लोगों में रहा। लोगों ने उसको पत्थर मारे, उसकी बेइज्जती की और उस पर थूका। पर यहाँ पर मैं कहूँगा कि उसका रद्दे अमल क्या था, वो भी बेगाने लोगों में रहा था। पहली आयत है, ए खुदा मुझ पर रहम फरमा, क्योंकि इंसान मुझे निगलना चाहता है, वो दिन भर लड़कर मुझे सताता है। मेरे दुश्मन दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं। ज़बूर 51 में उसने अंदरूनी दुश्मन यानी गुनाह की वजह से रहम मांगा। यहाँ उसने बैरूनी दुश्मनों की वजह से रहम मांगा। भाई यूसुफ, आप हमें अंदरूनी और बैरूनी जंगों के बारे में बताइए और खुदा के रहम के मुतल्लिक बयान करें। हमारा बैरूनी दुश्मन है शैतान। वो हमारा और दुनिया का मुखालिफ है, इंसान नहीं। दुनिया का बिगड़ा हुआ निज़ाम हमारा दुश्मन है। अंदरूनी दुश्मन जिस्मानी ख्वाहिशात हैं जो रूह से लड़ाई रखती हैं, और इसीलिए दाऊद ने 51 ज़बूर में अंदरूनी ख्वाहिशात का जिक्र किया। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि ये तमाम ख्वाहिशात बहुत संगीन हैं, जबकि यहाँ इसने बैरूनी दुश्मन की बात की है, और आप दुआ के जरिए इन दोनों ही चीजों के साथ लड़ सकते हैं। खुदा का रहम। जी बिल्कुल। ए खुदा मुझ पर रहम फरमा। तीसरी आयत पर अपनी राय दीजिए कि हम खुदा पर तकिया करते हैं। जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा। आप इसके मुतल्लिक क्या कहेंगे? लिखा है, अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। आप मुसीबत के दिन बेदिल ना हो तो फिर आप क्या करें? जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा। अगर हालात मुश्किल हों और आप मुश्किल में पड़ जाएं, या फिर मैं ये कहूंगा कि अगर आपके रिश्तेदार मुश्किल में हों, तो खुदावन पर तकिया करें। जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा। खुदावन पर भरोसा करने का नतीजा चौथी आयत में है, मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है। मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। बशर मेरा क्या कर सकता है? हम खुदा और उसके कलाम पर तकिया करते हैं, इससे मेरे अंदर इस्तेकामत पैदा होती है। बशर मेरा क्या कर सकता है? हमें बताइए कि हम परेशानियों के सैलाब का सामना किस तरह करें। लोग आपको बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे लाबन ने याकूब से कहा, वो कहता है कि मुझ में इतना मकदूर है कि तुम्हें दुख दे सकूं, लेकिन तेरे बाप के खुदा ने जी कल रात मुझे यूं कहा कि खबरदार तू याकूब को बुरा या भला ना कहना। हमारा खुदा अजीम है, हमें उस पर भरोसा है, हम उससे तसल्ली पाते हैं, और जो खुदा उन पर तवक्कुल करते हैं वो कोहे से उनकी मानद है जो हमेशा अटल है, बल्कि हमेशा कायम है। बशर मेरा क्या कर सकता है? दहशतगर्द लोगों के सरों का फुटबॉल बनाकर खेलते हैं, इससे दुख पहुंचता है। अगर खुदावंद हमारी तरफ ना होता, वो हमको जब जीता लोग ही हमारे खिलाफ उठे तो निकल जी जाते बिल्कुल हैं। सही कहा। भाई यूसुफ 8वीं आयत है, तू मेरी आवारगी का हिसाब रखता है, मेरे आंसुओं को अपनी मशकीज़ा में रख ले। क्या वो तेरी किताब में मुंदरज नहीं है? इन आयात के क्या मानी है? देखें, हम खुदा से दूर हो जाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं छोड़ता। जरा तसव्वुर करें कि किसी भीड़ में बच्चा खो जाए और माँ बाप को ना मिले तो वो परेशान हो जाते हैं। बच्चा गुम हो जाता है और बच्चे को रास्ता नहीं मिलता, लेकिन सही वक्त पर बाप बच्चे को आवाज देकर उसका हाथ थाम लेता है और कहता है कि जब से तू खो गया था मेरी निगाहें तुझ पर ही थीं, पर मैं ये सिखाना चाहता था कि तू मुझसे दूर ना हो। ऐसे ही खुदा से दूर होकर हम खो जाते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र हो तू मेरी आवारगी का हिसाब रखता है, और अगर हम परेशान होकर खुद पर मुसीबत लेकर आ जाएं तो वो हमें उस मुसीबत से छुड़ाता है। लेकिन ज़बूर 51 में उसने अंदरूनी दुश्मन यानी के गुनाह की वजह से रहम मांगा। हो सकता है कि हम उससे दूर हो जाएं, लेकिन वो कहता है तो भी
मैं बराबर तेरे साथ हूँ। तूने मेरा हाथ पकड़ रखा है। तू अपनी मसलहत से मेरी रहनुमाई करेगा और मुझे जलाल में कबूल करेगा। मेरे आंसुओं को अपने मशकीज़ा में रख ले। क्या वो तेरी किताब में मुंदरज नहीं है? इन अल्फाज के क्या मानी है? ईमानदार के आंसू खुदा के लिए बहुत कीमती हैं। वो आंसू जो बामानी तौर पर गिराए जाएं, हम गैर अहम चीजों के लिए भी आंसू बहाते हैं और बेमानी चीजों पर खुशी करते हैं, पर खुदावन बेमानी आंसुओं को मशकीज़े में नहीं रखता, न उन्हें किताब में लिखता है, पर खुदा हमारे आंसुओं की कदर करता है। मुबारक वो हैं जो गरीब हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। जी हाँ, जो गमगीन हैं उनके लिए नहीं, जैसे यूना एक पौधे के लिए खुश हुआ और मुरझाने पर गुस्सा। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि अगर आपके आंसू गैर जरूरी चीजों के लिए बहें तो खुदा उन आंसुओं को मशकीज़े में नहीं रखता, ना ही वो उन्हें मशकीज़े में रखता है और ना ही उन आंसुओं को अपनी किताब में लिखता है। यही हमारे सच है। पाक आंसू और दर्द को वो महफूज रखता है ताकि इनको अजर दे। खुदावंद आपको बरकत दे भाई यूसुफ। चलिए अब मेहमानों से जानते हैं कि उन्होंने आज जी क्या भाई। सीखा। आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? बेशक हमारे अंदरूनी और बैरूनी बहुत से दुश्मन होते हैं, लेकिन ज़बूर में लिखा है कि खुदावन हमारी आवाज़ सुनता है। जब भी उससे फरियाद करे तो वो सुनता है। खुदा के सामने मैं किसी भी वक्त, जगह या हालत में फरियाद कर सकता हूँ। दुख के वक्त अपनी परेशानी उसको दें, लेकिन दलेरी को मत खोएं। सुबह दोपहर शाम खुदावंद के तालिब हों, क्योंकि वो अपनी जान को छुड़ाता है। जब ईमानदार मुश्किल हालात में अपनी आंखें खुदावंद पर लगाते हैं तो उसको हौसला मिलता है। इस सतह पर खुदा के फर्जंद के सिवा कोई नहीं पहुंच सकता। मसीह ने हमें सतह पर पहुंचाया और कहा, ऐ बाप इनको माफ कर। सलीब पर उसने हमें सिखाया कि अपने दुश्मनों से बदला ना लें, बल्कि खुद भी बाप से मांगा कि वो उनको माफ करे। शुक्रिया। आप सबको खुदावंद बरकत दे। भाई खुदा यूसुफ को भी आपका बरकत भी दे। शुक्रिया। अजीज नाजरीन, खुदावंद के बंदे होते हुए अगर आप जमीन पर दुख उठाते हैं, आपके आंसू पाक हैं, आप मसीह की खातिर दुख उठाते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खुदावंद उनको महफूज रखता है। वो अजर के दिन उनको महफूज रखता है। मसीह के लिए दुख उठाना रायगा नहीं जाता, उसके लिए आंसू गिराना जाया नहीं जाता। मसीह के लिए जो भी दुख सहें वो जाया नहीं होता। खुदा के काम के लिए आपके आंसू जाया नहीं जाते। खुदावंद अपने मुकद्दसीन के आंसुओं की कदर करता है, लिहाजा अजर के दिन का इंतजार करें, हिम्मत न हारें। आने वाली किस्त में फिर मिलेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।